Hello children, hope you're all doing good. Let's start today's chapter, Rain, Thunder and Lightning. Rain, a form of precipitation. Other forms of precipitation are snow, sleet, hail and dew. Rain आपको पता है precipitation का form है and दूसरी forms भी हैं precipitation की, like these. Formation of rain. For rain to occur, water droplets need to first gather together in clouds. The gravity of earth causes these water droplets to fall as rain. While falling through dry air, some rain evaporates. The process of formation of rain is called the Bergeron process. देखिए रेन को होने के लिए वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं सबसे पहले वो गैदर हो जाती है क्लाउड्स में, फिर जो ग्रेविटी होता है अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जो वाटर ड्रॉपलेट्स है एज अ रेन दे फॉल. एंड ये जो प्रोसेस होता है जिसमें आपका रेन का फॉर्मेशन होता है दैट इज नोन एज Bergeron process. Measurement. An instrument called rain gauge is used to measure the amount of rainfall. It is expressed as the depth of water that collects on a flat surface. It is measured as liter per square meter. तो रेन गॉज से आपका नापा जाता है रेनफॉल को. ये आपका कैसे एक्सप्रेस किया जाता है कि डेप्थ ऑफ वाटर जो आपके किसी फ्लैट सरफेस पे आपका कलेक्ट होता है एंड इसको मेजर किया जाता है लीटर पर स्क्वायर मीटर. Shape of raindrop. The shape of raindrops was first studied by Philip Leonard in 1898. He found that small drops less than 2 mm diameter are approximately spherical. As they get larger to about 5 mm diameter, they become more donut shaped. Beyond 5 mm, they become unstable and fragment. On an average, raindrops are 1 to 2 mm in diameter. The biggest raindrops on earth were recorded over Brazil and the Marshall Islands in 2004. Some of them were as large as 10 mm. तो जो शेप था रेन ड्रॉप्स का सबसे पहले स्टडी किया था फिलिप लेनर्ड ने. तो उन्होंने देखा कि जो स्मॉल ड्रॉप्स हैं जिनका डायमीटर 2 mm से भी कम था वो अप्रॉक्सीमेटली स्फेरिकल थी. जैसे ही वो बड़ी हुई तो वो थोड़ा सा डोनट शेप में बन गई एंड 5 mm के बियॉन्ड वो अनस्टेबल और फ्रेगमेंट हो गई. pH. Generally, rain has a pH slightly under 6. This is because the carbon dioxide present in atmosphere dissolves in water to form minute quantities of carbonic acid, which then partially dissociates, lowering the pH. वैसे तो रेन का जो pH है वो आपका slightly under 6 होता है क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके एटमॉस्फेयर में होती है प्रेजेंट वो वाटर के साथ डिजोल्व होकर बनाती है. बहुत ही छोटी क्वांटिटी बनती है आपकी कार्बोनिक एसिड की. ओके फिर वो जो पार्शियली डिसोसिएट हो जाता है जिसकी वजह से पीएच लोअर हो जाता है. रेन एंड लाइटनिंग. रेन इज सेड टू बी हेवियर इमीडिएटली आफ्टर अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग. द कॉज ऑफ दिस फिनोमेनन इज ट्रेसेबल टू द बाइपोलर एस्पेक्ट्स ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल. The intense electric and magnetic field generated by lightning make the water molecules in the air surrounding the stroke to line up. These molecules then spontaneously create localized chains of water, similar to nylon or other polymolecules. These chains then form water droplets. When the electric field is removed, these drops then fall as intensified rain. देखिए जैसे आपकी फ्लैश ऑफ लाइटनिंग होती है तो इमीडिएटली इसकी जो रेन होती है ना वो हेवियर हो जाती है. तो ये जो कॉज होता है इस फिनोमिनन का ये आपका ट्रेसेबल होता है टू द बाइपोलर एस्पेक्ट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल. तो जो इंटेंस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है लाइटनिंग से तो वो क्या करते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं आपके एयर सराउंडिंग में टू लाइन अप. ओके एंड ये जो मॉलिक्यूल्स हैं स्पॉन्टेनियसली एक लोकलाइज चेन ऑफ वाटर को क्रिएट करते हैं जो आपके नाइलॉन या किसी भी पॉलीमॉलिक्यूल की तरह होते हैं. तो ये चेन्स जो हैं फिर ये वाटर ड्रॉपलेट्स बनाती हैं जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रिमूव होता है एंड देन ये ड्रॉप जो होती हैं एज इंटेंसिफाइड रेन ये नीचे गिरती हैं. थंडर. In the 3rd century BC, a Greek philosopher gave the first theory about thunder. His theory stated that thunder was caused by the collision of clouds. By the mid-19th century, some other theories were proposed. That lightning produces vacuum along its path when an accepted theory. The motion of air rushing to fill this vacuum resulted in thunder. In the later part of 19th century, it was believed that thunder was caused by an explosion of steam when water along the lightning channel was heated. Another theory said that gaseous materials were created by lightning and then exploded.
देखिए 3rd सेंचुरी में एक ग्रीक फिलोसोफर था, उन्होंने पहली थ्योरी दी थी थंडर के बारे में। तो उन्होंने कहा था कि थंडर जो है जो क्लाउड्स का कोलिजन होता है उसकी वजह से होता है। फिर मिड 19th सेंचुरी तक कुछ दूसरी थ्योरीज प्रपोज की गई। जो लाइटनिंग है वो वैक्यूम क्रिएट करता है अपने पाथ में, तो ये आपकी जो एक्सेप्टेड थ्योरी थी। जो मोशन होते हैं एयर की वो रश करते हैं इस वैक्यूम को फिल करने के लिए, जिसकी वजह से थंडर आपका क्रिएट होता है। फिर जो 19th सेंचुरी का लेटर पार्ट था उसमें क्या कहा गया कि जो थंडर था वो स्टीम के एक्सप्लोजन से होता है, कि जो वाटर आपका अलॉन्ग द लाइटिंग चैनल जब आपका हीट हो जाता है। फिर दूसरी थ्योरी थी, उनका कहना था कि जो गैसियस मटेरियल्स थे वो क्रिएट हुए किससे, बाय लाइटनिंग, एंड देन उसके बाद वो एक्सप्लोड हो गए। In the 20th century, a theory evolved that thunder must begin with a shock wave in the air due to the sudden thermal expansion of plasma in the lightning channel. अब 20th century में आपकी एक theory evolve हुई कि जो thunder है आपका वो आपका शुरू होना चाहिए with a shock wave एयर में, किसकी वजह से, सडन थर्मल एक्सपेंशन जब होगा आपका प्लाज्मा इन द लाइटनिंग channel. Let us know about electricity and electric charges before we learn about lightning. Electricity. The word electricity is derived from the Greek word electron, which means amber, Thales. The Greek philosopher who lived around 600 BC noticed that when we rubbed a piece of amber with a woolen cloth, the amber attracted small pieces of light objects such as particles of dust, straws, feathers, and small pieces of lint. Thales did not know about electricity then. He thought it was a property in amber only. Today we know that many kinds of substances can be electrified by rubbing. देखिए इलेक्ट्रिसिटी, थेल्स एक ग्रीक फिलोसोफर थे, तो उन्होंने नोटिस किया कि जब किसी पीस ऑफ एम्बर को किसी वुलन क्लॉथ के साथ रब किया जाता है तो जो एम्बर है वो छोटे छोटे पीसेस को अट्रैक्ट करता है किसी भी लाइट ऑब्जेक्ट के, जैसे कि डस्ट है, पार्टिकल्स है डस्ट के, स्ट्रॉज है, फिर जैसे ये छोटे छोटे पीसेस है लेंथ के। तो उस टाइम तक थेल्स को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में नहीं पता था, तो उनको ऐसा लगता था कि ये जो एम्बर है उसकी ये प्रॉपर्टी है। द चार्जेस प्रोड्यूस्ड इन द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आर नॉट ऑलवेज ऑफ द सेम काइंड, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स रब टुगेदर अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज विल बी ऑब्टेन्ड बाय देम। अच्छा, जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो आपके चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं वो हमेशा सेम तरह के नहीं होते हैं, ये डिपेंड करता है कि नेचर क्या है ऑब्जेक्ट का। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है आपके ये आपके डेवलप होते हैं। स्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। Activity 11.1. Rub a plastic comb with a dry hair and take the comb near the pieces of a straw or paper. The paper pieces or straw pieces get attracted to the portion of comb which was rubbed. Why did it happen? It happened because the comb got charged. देखिए आपने एक प्लास्टिक कॉम को रब करना है अपने ड्राई हेयर में, एंड फिर कॉम को आप पास लेके जाएंगे किसी आपके जो पीसेज हैं स्ट्रॉ के या पेपर के, तो जो पेपर पीसेज या स्ट्रॉ पीसेज होंगे वो आपके कॉम की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज आपका जो कॉम था वो चार्ज हो गया जब आपने उसको ड्राई हेयर के अगेंस्ट रब किया। एक्टिविटी 11.2. टेक 2 uncharged ebonite rods and suspend one of them freely. Charge the other rod by rubbing it with woolen cloth. Now bring this charged rod near the suspended rod. What do you see? The suspended rod attract the charged rod. It shows a charged object can attract an uncharged object. अच्छा, 2 अनचार्ज एबोनाइट रॉड्स आपने लेने हैं और उनको सस्पेंड कर देना है फ्रीली। अब आप क्या करेंगे कि एक जो रॉड है उसको आप रब करेंगे, उसको चार्ज करना है। आप कैसे चार्ज करेंगे? वुलन क्लॉथ के साथ उसको रब करना है। फिर आप इस चार्ज रॉड को आप सस्पेंडेड रॉड के पास लेके आएंगे, तो आप क्या देखेंगे कि जो सस्पेंडेड रॉड है वो चार्ज रॉड की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। तो ये क्या शो कर रहा है कि चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट कर सकता है किसी भी अनचार्ज ऑब्जेक्ट को। Take 1 ebonite rod and 1 glass rod. Rub the ebonite rod with woolen cloth and the glass rod with flannel. Both the rods will get opposite electric charges. अब आपको एक ebonite rod लेनी है, एक glass rod लेनी है। ebonite rod को आपने woolen cloth के साथ रब करना है, जबकि glass rod को आपने flannel के साथ। तो दोनों ही rods में आपके charges आएंगे but opposite. Now suspend one of the rods freely and bring the other rod near it. Again, there will be attraction between them. It shows that two objects with opposite charges attract each other. अब आपने क्या करना है कि एक रॉड को, इनमें से किसी भी एक रॉड को फ्रीली सस्पेंड करेंगे, दूसरी रॉड को इसके पास लेके आएंगे, तो देयर विल बी अट्रैक्शन। तो ये क्या शो करता है कि दो ऑब्जेक्ट्स जिनकी ऑपोजिट चार्ज हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्टिविटी साइंटिस्ट came to the conclusion that 2 types of charge exist in nature. The charge acquired by a glass rod on being rubbed with slit cloth is called positive charge. अच्छा, तो देखिए इस एक्टिविटी के बेसिस पे साइंटिस्ट ने पता लगाया, साइंटिस्ट ने कंक्लूड किया कि 2 तरह के चार्जेस है, एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव।
तो जो ग्लास रॉड ने चार्ज एक्वायर किया जब उसको सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया तो उस पर आपका चार्ज हुआ पॉजिटिव चार्ज. It is represented by plus sign. Okay, this means positive. The charge acquired by an eborite rod rubbed with flannel is called negative charge, which is represented by minus sign. It has been found that the nature of charge acquired by different substances or materials is either positive or negative. However, we must remember that assigning one type of charge a positive sign and the other a negative sign is just an accepted convention. We have seen that two objects with similar charges on them, whether positive or negative, repel each other. Similarly, two objects with dissimilar charges on them attract each other. Thus, we can conclude that like similar charges repel each other, while unlike or dissimilar charges attract each other. तो देखिए आपका जो चार्ज इबोनाइट रॉड ने एक्वायर किया जब उसको फ्लैनल के साथ रब किया गया उस पर आया नेगेटिव चार्ज, जिसको कि माइनस साइन से डिनोट किया जाता है. सो दो तरह के चार्जेस होते हैं. आपको किसी भी अनचार्ज बॉडी को किसी से आप क्या करेंगे, चार्ज करते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा. ओके, सो देखिए आपके जो पॉजिटिव, अगर आपके सेम चार्जेस होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल. एंड आपके अगर चार्जेस अलग अलग होते हैं तो आप एक दूसरे को करते हैं अट्रैक्ट. Activity 11.3. Rub a glass rod with a piece of silk. The rod acquires a positive charge and the silk an equal negative charge. On the other hand, rub a rubber rod with a piece of woolen cloth. The rubber rod will acquire negative charge. How can we prove the charges? We know that like poles repel and unlike poles attract. Now bring the glass rod near the rubber rod. The two will attract because one has positive and the other has negative charge. This experiment can be performed by suspending the two rods in the air. If only glass rods or rubber rods are suspended and brought closer to each other, they will repel and move apart. अच्छा देखिए, आपको ना ग्लास रॉड को रब करना है सिल्क के क्लॉथ के साथ, पीस के साथ. तो रॉड में आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और सिल्क में आपका इक्वल चार्ज आएगा, बट वो नेगेटिव होगा. ऑन द अदर हैंड, जब आप रबर रॉड को रब करेंगे वुलन क्लॉथ के साथ तो रबर रॉड को में आपका नेगेटिव चार्ज एक्वायर हो जाएगा. तो हम इसे कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखिए लाइक पोल्स यानी कि सेम चार्जेस रिपेल करते हैं एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट. अब आपने क्या करना है, ये ग्लास रॉड को आप रबर रॉड के पास लेके आएंगे तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि एक के पास है पॉजिटिव चार्ज तो दूसरे के पास है नेगेटिव चार्ज. और इसके अलावा इस एक्सपेरिमेंट को कैसे परफॉर्म किया जा सकता है कि दोनों रॉड्स को हम एयर में सस्पेंड कर दें. अगर ग्लास रॉड या रबर रॉड को सस्पेंड करते हैं एंड दोनों को एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो वो क्या करेंगे, दे विल रिपेल एंड मूव अपार्ट. क्योंकि जो लाइक चार्जेस होते हैं आपके वो क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल, एंड देन रिपेल करेंगे तो दे विल मूव अपार्ट. एक्टिविटी 11.4. टेक 2 ebonite rods and 2 glass rods. Rub both the ebonite rods with woolen cloth and the glass rods with flannel. आपको ebonite जो रॉड है आपने उसको किसके साथ रब करना है, वुलन क्लॉथ के साथ, एंड जो आपका ग्लास रॉड है उसको करना है फ्लैनल के साथ. Both the ebonite rods will acquire a similar negative charge and both the glass rods will acquire a similar positive charge. Suspend one ebonite rod and one glass rod freely. Bring the other ebonite rod near the suspended ebonite rod. The suspended rod will reflect away, showing thereby that similar charges repel each other. The glass rod will also behave in a similar manner. देखिए आपके जो दोनों ebonite rods हैं उनमें आपका नेगेटिव चार्ज आएगा, जबकि आपकी दोनों ही ग्लास रॉड्स में एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो आपने ebonite रॉड को सस्पेंड करना है, ग्लास रॉड को फ्रीली. फिर आपने दोनों जो आपकी जो दूसरी ebonite रॉड है उसको सस्पेंडेड ebonite रॉड के पास लेके आना है. तो आपकी जो सस्पेंडेड रॉड है इट विल रिफ्लेक्ट अवे, शोइंग दैट सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर. जो ग्लास रॉड्स हैं वो भी सेम मैनर में बिहेव करेंगे. When electric charges are produced through friction by rubbing of one material upon another, they result in static electricity. Static electricity means electricity at rest. The electricity that travels along wires is electricity in motion. It is called current electricity. देखिए जब आपके इलेक्ट्रिक चार्जेस को प्रोड्यूस किया जाता है फ्रिक्शन के थ्रू, यानी कि जब उनको रब किया जाता है एक मटेरियल को दूसरे में, तो उसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बनती है. तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी रेस्ट पे, एंड जो इलेक्ट्रिसिटी आपके वायर्स के अलॉन्ग ट्रैवल करती है वो आपकी मोशन में होती है एंड उसे कहा जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी. सो देखिए आपको यहाँ पे दिए गए हैं कि पॉजिटिव चार्जेस किस में होगा, नेगेटिव चार्जेस किस में होगा, राइट. डिफरेंट वेज और चार्जिंग अ बॉडी. वी हैव लर्नड हाउ टू चार्ज अ वैरायटी ऑफ मटीरियल्स बाय रबिंग. We know that when two materials are rubbed together, it results in friction. देखिए अभी तक तो हमने पढ़ा कि किस तरह से हम वैरायटी ऑफ मटेरियल्स को रब करने से उन्हें चार्ज कर सकते हैं. तो ये ऐसा कब होता है,
देखिए जब भी हम दो मटेरियल्स को रब करते हैं तो इट रिजल्ट इन फ्रिक्शन. वी कैन से दैट यू कैन चार्ज अ बॉडी बाय फ्रिक्शन, यानी कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं, किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं बाय फ्रिक्शन. दिस मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी इज नोन एज चार्जिंग बाय friction. Let us find out more about this method by doing an activity. Activity 11.5. Take a 12 to 15 centimeter plastic scale and a piece of flannel about 6 to 7 centimeter in length. Fix this cloth with glue over the scale on one side as shown in the figure. Now rub this scale with another plastic scale for a few minutes. Bring the rubbed ends of two scales one by one over near small bits of paper. What do you see? You will see that both the scales attract the pieces of paper. It means that when two bodies are rubbed together, both of them get charged. देखिए आपने प्लास्टिक स्केल लेना है जो जनरली आप यूज़ करते हैं 15 सेंटीमीटर का, एंड एक पीस लेना है फ्लैनल का जो आपका 6 से 7 सेंटीमीटर है लेंथ में. आपने इस क्लोथ को फिक्स करना है विद ग्लू ओवर द स्केल एक साइड पे, जैसे कि आपको इसमें शो किया गया है पिक्चर में, राइट. अब आपने क्या करना है, इस स्केल को रब करना है दूसरे प्लास्टिक स्केल से कुछ मिनट के लिए. फिर आप क्या कर देखेंगे, अब आपने क्या करना है कि जो रब्ड एंड्स हैं दोनों स्केल्स के वन बाय वन आप ये छोटे छोटे पीसेस हैं ना, बिट्स ऑफ पेपर, इसके पास लेके आएंगे. तो आप क्या देखेंगे कि जो दोनों ही जो स्केल्स हैं वो पीसेस को अट्रैक्ट करेंगे, पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करेंगे. Again, rub the two scales together, keeping the scales in contact, bringing them near the bits of paper. You will see that this time the scales do not attract the bits of paper. Next, bring the scales one by one near the bits of paper. What do you observe? Even one attracts the pieces of paper. Thus, we see that two scales, even after having been rubbed with each other, do not behave like a charged body, even if they are kept in contact. However, each one of them separately behaves like a charged body. अच्छा, अब क्या करना है आपने कि दो स्केल्स को रब करना है आपने, ओके, और स्केल को कांटेक्ट में रखना है. फिर बिट्स ऑफ पेपर्स के पास आप लेके आएंगे तो आप देखेंगे कि जो पेपर है वो उन स्केल्स की तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होंगे. फिर आप क्या करेंगे, स्केल्स को वन बाय वन लेके आएंगे इन पेपर के बिट्स की पीस में, तो आप देखेंगे कि हर स्केल जो है उसमें वो जो पेपर्स है वो जो छोटे छोटे पीसेस हैं पेपर के वो अट्रैक्ट हो जाएंगे. तो देखिए जब आपने दोनों स्केल्स को एक दूसरे के साथ रब किया तो वो चार्ज बॉडी की तरह उन्होंने बिहेव नहीं किया, राइट. एंड उसके बाद जब आपने उनको सेपरेटली यूज़ किया तो दे बिहेव लाइक अ चार्ज बॉडी. लाइटनिंग इज अ नेचुरल फिनोमिनन एंड गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट थंडरस्टॉर्म्स. अब लाइटनिंग कैसे होती है देखते हैं. अक्रेंस. Lightning generally occurs on the days that are hot and humid. It is caused by the rapid rising of the air. Lightning आपके generally hot and humid days में होती है और ये rapid rising जो होता है ना एयर की, उसकी वजह से होता है. As the warm damp air rushes upward, it is cooled by expansion and the water vapor begins to condense. This condensation releases heat and warms the air further, thereby providing more force to the rising air currents. अच्छा, कंडेंसेशन होगा, उसकी वजह से हीट एंड वार्म जो है रिलीज होगा, एंड देयर बाय क्या होगा कि जो ज़्यादा फोर्स आपका की वजह से आपके राइज होंगे एयर करंट्स. द कंडेंस्ड मॉइस्चर स्टार्ट्स टू फॉल एज ई ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉल थ्रू द मास ऑफ रैपिडली राइजिंग एयर. फ्रिक्शन विद द एयर tears some of the drops apart into spray or mist. In this process, electrical charges are generated. The water drops falling to the lower levels of clouds have a negative charge and the fine spray that rises to the upper levels has positive charge. अब देखिए जो कंडेंस्ड मॉइस्चर है आपका, इट विल स्टार्ट टू फॉल. फिर ये जो ड्रॉप्स होंगे वाटर की, ये आपके पड़ेंगे आपके थ्रू द मास ऑफ रैपिडली राइजिंग एयर. तो फ्रिक्शन आपका जो एयर के साथ वो क्या करेगा, कुछ ड्रॉप्स को टीयर कर देगा आपके स्प्रे या मिस्ट में. इस प्रोसेस में जो है इलेक्ट्रिकल चार्जेस आपके जनरेट होते हैं, राइट. फिर जो वाटर ड्रॉपलेट्स आपके लोअर लेवल ऑफ क्लाउड्स में पड़ रहे हैं उनका नेगेटिव चार्ज होता है, एंड देन जो फाइन स्प्रे हैं ये आपके राइज हो जाएंगे अपर लेवल में जहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है. क्लाउड्स एंड चार्जेस. A cloud may have a positive or a negative charge, or different sections of the same cloud may have different charges. Sometimes these clouds will accumulate charge until sparks jump from one cloud to another of opposite charge and the charges get neutralized. Such a chain of sparks is called lightning. अच्छा, एक क्लाउड में आपका पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो सकता है, या डिफरेंट सेक्शंस होते हैं सेम क्लाउड्स के जिनमें डिफरेंट चार्जेस होते हैं. तो कई बार क्या होते हैं कि जो क्लाउड्स हैं ये चार्जेस को एक्यूमुलेट कर देते हैं जब आपके स्पार्किंग अंटिल जब तक आपकी जो स्पार्क्स हैं वो एक क्लाउड से दूसरे में आपके जंप नहीं करते, या फिर ऑपोजिट चार्ज या जो चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं. तो ये जो चेन ऑफ स्पार्क्स है इसे कहा जाता है लाइटनिंग. फ्रैंकलिन्स एक्सपेरिमेंट.
Though earlier it was presumed that lightning carries electricity, it was Benjamin Franklin who proved it with an experiment. In 1747 AD, Franklin began his experiments on electricity with simple apparatus which he received from a friend in England. His experiment involved capturing electric charge. It was he who gave the notion of positive and negative charge. अच्छा, सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन थे जिन्होंने ये प्रूव किया था दैट कि जो लाइटनिंग है वो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करती है. तो उन्हें एक सिंपल से पैराटस के थ्रू ये प्रूव किया था. तो उनके जो एक्सपेरिमेंट में उसमें इन्वॉल्व था इलेक्ट्रिक चार्ज को कैप्चर करना. और ये पहले थे जिन्होंने ये बताया था कि दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होते हैं. ऑल्दो ही वाज नॉट द फर्स्ट टू सजेस्ट द कनेक्शन between lightning on electricity, he proposed an effective method of showing this link. His proposal was to erect an iron on a high tower and draw electricity from a storm. This was published in London before he performed his dangerous but celebrated experiment with kite in 1752. When a cloud rolled over the kite, electricity traveled down the string of the key to a metal key attached to the string at the end. A wire attached to the string also drew sparks from the key. Franklin later published instructions on the basis of his experiment on how to protect houses with lightning rods. Okay, तो उनका प्रपोजल क्या था कि एक आयरन को इरेक्ट करना हाई टावर पे एंड इलेक्ट्रिसिटी को आपका ड्रॉ करना फ्रॉम अ स्टॉर्म. तो ये आपका पब्लिश किया गया था लंदन में बिफोर ही परफॉर्म्ड हिज डेंजरस एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने 1752 में किया था. कि जब एक क्लाउड था रोल्ड ओवर द काइट एंड इलेक्ट्रिसिटी जो थी वो जो काइट में जो स्ट्रिंग थी उसके थ्रू डाउन ट्रैवल की एंड एक मेटल की थी जो कि स्ट्रिंग के एंड पे अटैच थी. फिर जो वायर थी आपकी वो क्या था कि वो आपके अटैच थे स्ट्रिंग के साथ, उसने भी स्पार्क्स को ड्रॉ किया फ्रॉम द की. फिर फ्रैंकलिन ने जो है इंस्ट्रक्शंस पब्लिश की अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कि किस तरह से लाइटनिंग रॉड्स की हेल्प से हाउसेस को प्रोटेक्ट किया जा सकता है. When clouds come close to the surface of Earth, they induce charges of the opposite signs, positive and negative, on the objects of the Earth. As the charge on the cloud increases, or as the distance between the cloud and the Earth decreases, the magnitude of the induced charges is increased until a spark jumps between the cloud and the Earth to neutralize the charges. Such a spark discharge is called lightning. Here the cloud and the Earth are like the dielectric insulator. देखिए जब क्लाउड जो हैं आपके अर्थ के सरफेस पे आते हैं तो ये चार्जेस इंड्यूस करते हैं ऑपोजिट साइंस के, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ऑन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द अर्थ. तो आपके जो चार्ज है क्लाउड पे इंक्रीज होते हैं या फिर जो डिस्टेंस होता है क्लाउड्स के बीच में आपका क्या होता है या अर्थ के बीच में डिक्रीज होता है. तो जो मैग्नीट्यूड होता है इंड्यूस्ड चार्जेस का वो इंक्रीज हो जाता है जब तक कि आपका एक स्पार्क जो है वो जंप नहीं करती बिटवीन द क्लाउड एंड द अर्थ, जिससे कि चार्जेस न्यूट्रलाइज हो जाते हैं. तो ऐसे स्पार्क डिस्चार्ज को कहा जाता है लाइटनिंग. यहाँ पे आपकी जो क्लाउड एंड अर्थ है ये आपकी है डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर. व्हेन लाइटनिंग अकर्स, एयर प्रूव्स a weak insulator and cannot keep the two charges apart. This causes fire on the structure that come in the way of lightning. Obviously, tall buildings become victims of lightning. अब जब लाइटनिंग होती है तो एयर आपका एक वीक इंसुलेटर है एंड ये चार्जेस को अपार्ट नहीं रख पाता है. इसकी वजह से फायर लग जाती है किसी भी स्ट्रक्चर में जो लाइटनिंग के रास्ते में आते हैं. ऑब्वियसली आपकी जो टॉल बिल्डिंग्स होती हैं ये लाइटनिंग जो है इन पे पड़ती है. How to protect building from lightning? Benjamin Franklin's experiment with a kite and key provided him with an idea that buildings could be saved from the destruction caused by lightning. Shortly after he proved that lightning was a form of electricity, he suggested that if metal rods were installed on the top of the buildings and connected by thick wire to the ground, any lightning hitting the building would pass through the metal into the ground without harming the building. Franklin suggested that when lightning strikes, it seeks out the tallest target. And since lightning rod is the tallest target and because its metal has low electrical resistance, lightning will strike it. बेंजामिन फ्रैंकलिन का जो एक्सपेरिमेंट था की और काइट के साथ उनको एक आइडिया मिला कि जो बिल्डिंग्स हैं उनको लाइटनिंग के डिस्ट्रक्शन से सेव किया जा सकता है. तो उन्होंने प्रूव किया दैट जो लाइटनिंग है एक फॉर्म है इलेक्ट्रिसिटी का. तो उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि मेटल रॉड्स को इंस्टॉल कर देना चाहिए आपके बिल्डिंग के टॉप पे एंड देन उनको कनेक्ट किया जाना चाहिए थिक वायर्स से टू द ग्राउंड. तो कोई भी लाइटनिंग जो है बिल्डिंग को हिट करती है तो वो मेटल के थ्रू आपकी पास हो जाएगी ग्राउंड में और इस तरह से बिल्डिंग को कोई भी हार्म नहीं होगा. The area that a lightning rod can protect is an imaginary circle starting from the top of the rod and extending down to a circle of the ground with the radius equal to the height of the building and rod.
Working of lightning conductor. Generally, a lightning conductor is a thick copper strip fixed to the outer wall of building. The upper end of the strip has several sharp spikes and the lower end is connected to the copper plates which are buried in the earth. The electrons gathering around the spikes are so numerous that they repel any negatively charged air particles which move up towards the clouds. Thus, lesser is the chance of a lightning strike on the building. आपका जनरली जो लाइटनिंग कंडक्टर होता है एक थिक कॉपर स्ट्रिप होती है जो बिल्डिंग के आउटर वॉल पे फिक्स होती है एंड अपर एंड जो होते हैं उसमें जो स्ट्रिप्स के होते हैं कुछ आपके शार्प स्पाइक्स होते हैं. इस तरह से आपके उसमें स्पाइक्स होते हैं लाइक जो भी आपका मेटल का जो कॉपर स्ट्रिप है. एंड जो लोअर एंड होता है वो कनेक्टेड होता है कॉपर प्लेट्स के साथ जो कि आपका अर्थ में बैरिड होता है. फिर जो इलेक्ट्रॉन आपके गैदर होते हैं स्पाइक्स के अराउंड वो इतने ज़्यादा होते हैं कि वो एक दूसरे रिपेल करते हैं किसी भी नेगेटिवली चार्ज एयर पार्टिकल्स को जो क्लाउड्स की तरफ मूव करते हैं. तो इससे क्या होता है कि चांस जो होते हैं लाइटनिंग स्ट्राइक के बिल्डिंग पे ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं. इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अर्थ न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव चार्ज ऑन द बैरिड कॉपर प्लेट एंड दिस हेल्प्स टू इंक्रीज द चार्ज ऑन द स्पाइक. अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके अर्थ के वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं पॉजिटिव चार्ज उस कॉपर प्लेट पे जो आपकी बैरिड है एंड इससे क्या होता है कि जो इंक्रीज हो जाता है चार्ज का ऑन द स्पाइक. सम फैक्ट्स अबाउट कंडक्टर्स. A peculiar thing about charge on a conductor is that it resides on the outer surface only. When a roof plane used for transferring small amounts of charge from a charged object to an electroscope touches the outside of a charged follow conductor, it receives charge. But when it touches the inside of the conductor, it receives no charge. The charge is detected by an electroscope. This is the reason why it is safe inside the car when you are caught in a thunderstorm. If lightning strikes, the charge remains on the outer surface and may enter the ground through the lowest metallic part of the car. आज एक बहुत ही अजीब बात क्या है चार्ज की किसी कंडक्टर में कि ये आउटर सरफेस पे ही रहता है बस. तो जब कोई आपका रूफ प्लेन है वो किसी भी चार्ज कंडक्टर के आउटसाइड को अगर टच करता है तो ये चार्ज रिसीव कर देता है. बट ये जब कंडक्टर के इनसाइड को टच करता है तो उसको कोई भी चार्ज रिसीव नहीं होता. तो ये जो चार्ज है इसको हम इलेक्ट्रोस्कोप से डिटेक्ट कर सकते हैं. तो इसीलिए ये रीज़न होता है कि कार के अंदर सेफ होता है अगर आप किसी भी थंडरस्टॉर्म में अगर आप फंस गए हैं तो राइट. It is observed that concentration of charge on a conductor is greatest where the surface is most sharply curved. तो जो चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन है किसी भी कंडक्टर पे वो ग्रेटेस्ट कहाँ पे होता है उस सरफेस पे जो आपका शार्पली कर्व्ड होता है. बेनिफिट्स ऑफ लाइटनिंग. लाइटनिंग नो डाउट इज हार्मफुल एंड कॉजेज हेवी फायर्स एंड डैमेजेस बट देयर आर सम बेनिफिट्स ऑफ लाइटनिंग टू. The soil nitrates, which are good nutrients for plants, are formed from the atmospheric nitrogen. This nitrogen reacts with the oxygen forming nitric oxide, and when more oxygen combines with this gas, nitrogen dioxide is formed. Lighting harmful तो है ही लेकिन बहुत सारे केसेस में ये बेनिफिशियल भी है. देखिए जैसे जो सॉइल नाइट्रेट्स होते हैं आपके जो गुड न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स के लिए ये आपके कहाँ से बनते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से. तो ये जो नाइट्रोजन है रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ जिससे आपका बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड एंड फिर जब ज़्यादा ऑक्सीजन आपकी कंबाइन होती है इस गैस के साथ तो आपका बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. This gas turns into liquid when it rains and falls on earth as nitric acid. Nitric acid in association with soil carbonates results in the formation of soil nitrates. फिर जो गैस है ये आपके लिक्विड में टर्न हो जाती है और जब बारिश होती है एंड तो अर्थ पे एज नाइट्रिक एसिड गिरता है. नाइट्रिक एसिड सॉइल कार्बोनेट के साथ एसोसिएटेड करके बनाता है सॉइल नाइट्रेट्स. The ozone, which filters the ultraviolet rays from the sun, is formed in the atmosphere with the help of lightning. Ozone protects us from various skin diseases which may otherwise be caused by the ultraviolet rays. Lightning sometimes bring down water in huge quantity over the lands which are devoid of water, thereby bringing life to barren land. ओजोन गैस के बारे में आपको पता है जो हमें सन की हार्मफुल यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती है. तो ये आपकी बनती है लाइटनिंग की हेल्प से. एंड लाइटनिंग कई बार क्या होता है कि इतना ज़्यादा पानी लेके आ जाता है किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है. तो इस तरह से जो बैरन लैंड होती है उसमें फिर से आपका जो लाइफ है वो आपकी पॉसिबल हो पाती है. पोटेंशियल डिफरेंस. अ चार्ज कंडक्टर हैज़ ईदर एन एक्सेस और अ डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. Charge is measured in coulombs and each electron carries a negative charge of about 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb.
Charge moves through a conductor from one place to another when there is a potential difference between the two places. When a negatively charged conductor is connected to earth, there is a flow of electrons from the conductor to the earth because of the potential difference between the conductor and the earth. देखिए आपका जो चार्ज कंडक्टर होता है ना, उसमें या तो आपके एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिट होता है. अब चार्ज को मेजर किया जाता है कूलम्स में, और हर इलेक्ट्रॉन में आपका एक नेगेटिव चार्ज होता है इतने कूलम का. तो जो चार्ज हैं आपके वो कंडक्टर के थ्रू मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरे में, जब उनकी जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब दो प्लेसेस के बीच में. तो जब नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर को अर्थ के साथ कनेक्ट किया जाता है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फ्रॉम द कंडक्टर टू द अर्थ बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड द अर्थ. Points to remember. Rain is a form of precipitation. Rain is measured using rain gauge. Normal size of a raindrop is 1 to 2 millimeter. pH of rain is generally under 6. Remember that. Aristotle said thunder was caused by the collision of clouds. Modern theory says thunder must begin with a shock wave in the air. Word electricity comes from the Greek word electron, which means amber. Lightning is a natural phenomenon. Clouds have positive and negative charges of electricity. Franklin proposed lightning conductors for saving the buildings. Lightning conductors absorb the electricity and send it to the ground. Lightning causes havoc when it strikes the structures on earth. The inside of a car is the safest place against thunderstorms. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, and इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.